Assalamu alaikum. Now we start with the third topic of the microcirculation, and that is the lymphatic system. And so देखा ये क्या है कि the fluid filtering from the arterial ends of the capillaries equals almost exactly the fluid returned to the circulation by absorption. This is Starling's equilibrium for capillary exchange. We are not talking about the pressures, we are talking about the exchange, and we are talking about the amount of fluid filtering from the arterial ends of the capillaries equals almost exactly with the fluid returned to the circulation by absorption. जो आपने फिल्टर किया, जो आपने रीअब्जॉर्ब किया, वो 9/10 की हद तक इक्वल है. द स्लाइड डिसइक्विलिब्रियम, वो जो 1/10 रह गया था, अकाउंट्स फॉर द फ्लूइड दैट इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन बाय वे ऑफ द लिम्फेटिक्स, एंड दिस इज सिंपल. So here we see that the lymphatic system is a closed system of lymph channels or lymph vessels through which the lymph flows. कैसे close हैं? ये पीछे कैपिलरी से नहीं चली आ रही, बल्कि यहाँ पर ब्लाइंड एंड से शुरू हुआ है. ब्लाइंड एंड से शुरू हुआ है और these are the lymph capillaries. और ये जो आसमानी रंग आप देख रहे हैं, इसमें से fluid is entering these lymphatic capillaries so that the fluid which could not be reabsorbed into the venules, into the venous system, is going back into the circulation when these lymphatic channels will collect and will drain into the venous system. These lymph collecting ducts drain the fluid from the capillaries to the lymph vessels, from the capillaries to the lymph vessels that will then coalesce to form right lymphatic duct and the thoracic duct. The lymph vessels are not present in the superficial portions of skin, in the CNS, in the endomysium and in the bones. अभी क्या बन गया आपका MCQ बन गया, और MCQ में मैंने ये 4 तो डाल देने हैं जहाँ ये प्रेजेंट नहीं होता, और अगर मैं लिख देती हूँ आर प्रेजेंट इन, तो जो पांचवी चीज़ मैं फर्ज करो मैं लिखती हूँ हार्ट, या मैं लिखती हूँ GIT, या मैं लिखती हूँ लिवर, तो वो कोई भी चीज़ जो पांचवा होगा that would be the right answer if I write down lymph vessels are present in. ये आपका MCQ इस स्लाइड पर मौजूद है. So now coming to the lymph channels of the body, हमने भी जिक्र किया था thoracic duct का और right lymphatic duct का. तो the thoracic duct drains the lymph vessels from the lower part of the body. जो जैसे inferior vena cava लेकर आ रही है ना lower part of the body से blood into the right atrium, तो वो तमाम lower part of the body की जो blood है वो चला जाएगा thoracic duct में, जो कि left side से enter हो रही है into the subclavian vein. इसके साथ ही लेफ्ट साइड ऑफ द हेड का, लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म का और लेफ्ट आर्म का और पार्ट्स ऑफ द चेस्ट इनटू द ब्लड वीनस सिस्टम सारे के सारे जाएंगे थोरेसिक डक्ट से. और ये कहाँ जाएंगे? एट द जंक्चर ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. अगर आपने डायसेक्शन की हुई है तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ पर जाकर ड्रेन हो रही हैं. द राइट लिम्फ डक्ट जो है वो आपकी ड्रेन करेगी राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, राइट साइड ऑफ द आर्म, राइट आर्म और पार्ट्स ऑफ द राइट थोरेक्स, एंड दे विल गो इनटू द राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन का जहाँ जंक्चर हो रहा है वहां पर जाकर ये ड्रेन करेगी. अब हम जो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिम्फ फॉर्मेशन में तीन तो हमारी स्टार्लिंग्स फोर्सेस हैं. Hydrostatic pressure in the capillaries, colloidal osmotic pressure in the tissue fluid और colloidal osmotic pressure of the plasma. और इसको हम चूंकि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तो ये आपके लिए स्टार्लिंग्स फोर्सेस आ गई. दूसरा जो दो आपके पास है कैपिलरी परमिएबिलिटी और कैपिलरी सरफेस एरिया, ये दोनों आपकी KF से रिलेटेड हो गई. और हमें पता है कि फिल्ट्रेशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल rate of formation of tissue fluid is equal to KF multiplied by net filtration pressure.
यहाँ डिटरमिन होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यहाँ डिटरमिन होता है KF, और इन दोनों के कम्बिनेशन से डिटरमिन होता है कि कितना टिश्यू फ्लूइड बनेगा और उसमें से कितना जो है वो लिम्फ फॉर्मेशन करेगा। इंट्रावीनस फ्लूइड्स जो है अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो फिर लिम्फ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। दिस इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कि आप ऐड कर देते हैं उसमें फ्लूइड्स। तीसरी चीज है इसमें लोकल टेम्परेचर। लोकल टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, द पार्टिकल स्ट्राइकिंग द कैपिलरीज with more force, they will enter the tissue fluid and due to the kinetic energy, and this will allow them to cause lymph formation. So now we come to the composition of the lymph that has been formed, and we see that the volume is 2 to 3 liters per day, and this volume 3 liters per day, actually 7200 liters of blood circulates in the body in one day, and this blood forms 20 liters. All of this blood throughout the day forms 20 liters of tissue fluid. 17 liters of tissue fluid is reabsorbed into the capillaries, venous end of the capillaries, and 3 liters per day is the volume of the lymph that is entering the blind end of the lymph capillaries and then through the lymphatic vessels into the venous system of the body. तो जितना निकाला था बाहर, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, उसमें 3 liters per day आपकी volume of lymph है. The proteins are present in it and these proteins are 3 to 5 grams per deciliter, और total volume जो है आपका 2 to 3 liters per day, उसका ये बनाती हैं 1.5 to 6% of वॉल्यूम इज बाय प्रोटीन्स. इन प्रोटीन्स में आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती हैं. इसके अलावा इन प्रोटीन्स के साथ सॉल्ट्स भी अटैच होते हैं, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स के. इसके अलावा लिम्फोसाइट्स आर एडेड टू दिस लिम्फ बाय द लिम्फ नोड्स, जो कि इसके रास्ते में पियर्स कर रही होती हैं, और इसके साथ साथ वो न्यूट्रिशन जो लिम्फ के टिश्यू फ्लूइड में मौजूद थी और या फिर जो जीआईटी में से एब्जॉर्ब हुई थी टिश्यू फ्लूइड में, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड काइलोमाइक्रोन्स, वो भी इसके अंदर ही साथ लिए के जाए जाते हैं, और जो टिश्यू के सेल्स ने यूरिया एक्सक्रीट किया है वो भी लिम्फ अपने साथ लेकर चलता है. Now we have done the formation of the lymph. Simply है कि जब आपकी स्टार्लिंग्स इक्विलिब्रियम जो है वो जिसमें थोड़ा बहुत डिसइक्विलिब्रियम उसमें जो होता है कि वेन्स में जो फ्लूइड नहीं जाता वो ब्लाइंड एंड वाली लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और उसी टिश्यू फ्लूइड को जो ब्लाइंड एंड वाली लिम्फ वेसल्स में जा रहा है हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं. बाद में इसमें लिम्फ नोड्स जो है वो अपनी और आइटम्स भी ऐड कर देती हैं, और जब ये थोरेसिक डक्ट में पहुंचता है तो इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी फर्क होती है एज कम्पेयर टू द लिम्फ कैपिलरी जहां ये टिश्यूज में से चला जाता है. अब रेट ऑफ लिम्फ फ्लो कैसे अफेक्ट होगा, इसमें पहली चीज आ रही है प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड बना है उसमें हमने कहा था -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो उसमें प्रेशर को एब्जॉर्ब कर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रेशर बनने ही नहीं देती. हत्ता कि सक्शन प्रेशर बन जाता है, फ्लूइड का अपना प्रेशर नहीं होता. रादर प्रोटियोग्लाइकेन सक द फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज आउटसाइड. ये प्रेशर ग्रेडियंट अगर टिश्यू फ्लूइड का -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो या फिर बढ़ता बढ़ता +2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला भी जाए तो रेट ऑफ लिम्फ फ्लो को ये डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना कम प्रेशर होगा फ्लूइड का इनटू इन द टिश्यू स्पेसेस उतनी आहिस्ता लिम्फ फ्लो करेगा. जाहिर है थोड़ा फ्लूइड है तो थोड़ा फ्लो करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा टिश्यू फ्लूइड का इन द टिश्यू स्पेसेस तो लिम्फ फ्लो का रेट उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बल्कि ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा. But then there is an upper limit to that, and this is 2 millimeter of mercury. After that, the rate of lymph flow will not increase. दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज. लिम्फ कैपिलरीज जो आप देखेंगे, अभी आपको उसकी डायग्राम भी साथ ही दिखाऊंगी, उसमें एंकरिंग फिलामेंट्स जो हैं वो लिम्फ कैपिलरीज को अपनी जगह पे रखे हुए हैं, और वो इस तरह है कि कैपिलरीज में से फ्लो को वापस इनटू द टिश्यू स्पेसेस नहीं जाने देते, लेकिन फ्लूइड को अहेड इनटू द लिम्फ वेसल्स कैपिलरीज में से
जाने की वो इजाज़त देते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अभी आप ये देखेंगे। पेरिस्टालसिस इन द लिम्फ चैनल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। सो आपको ये पता चल गया कि कैपिलरीज में तो स्मूथ मसल्स नहीं हैं, लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें आगे जाके स्मूथ मसल्स भी होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेरिस्टालसिस की वे में और फ्लूइड को आगे बढ़ाएंगे। थोरेसिक डक्ट की जो आपकी प्रेशर है उसने सबक्लेवियन वेन में एंटर होना है, तो 50 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की फोर्स से पुश करती है lymph फ्लो इनटू द सबक्लेवियन वेन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल जो है, जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे भी हमारा जो लिम्फ है वो आगे बढ़ता है और इसका रेट ऑफ फ्लो 30 टू 50 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एज इन द केस ऑफ एक्सरसाइज। टिश्यू प्रेशर अगर आप बाहर से दबाएं किसी बॉडी को, जैसे कि कोई शख्स कहता है मेरे बाजू सूज रहा है, तो आप उसको दबाएं तो वो टिश्यू प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फ्लूइड को आगे ले जाता है। इसी के लिए हम अपने पेरेंट्स की टांगों पे या बाजुकात उनके बाजुओं पर क्रेप बैंडेज भी बांधते हैं जब हम ये देखते हैं कि बाजू सूजे हुए हैं और जब टांगें सूजी हुई हैं और इनको मुसलसल दबाव की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड एज में टिश्यू प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। आर्टीरियल पल्सेशंस, आर्टरीज जो हैं जब वो चल रही होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उनमें जो पल्सेशंस आती हैं वो भी हेल्प करती हैं लिम्फ को कि वो अपनी एक जगह से आगे बढ़ा सके लिम्फ के फ्लो को। चलो जी, हमारी सेकंड जो पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, उसमें है प्रेशर ग्रेडियंट। So you increased flow between an interstitial fluid pressure of -6 to +2 millimeter of mercury. How? इस डायग्राम को देखें। वन जो था रेट ऑफ फ्लो 120 मिलीलीटर पर आवर ये चल रहा था, और जैसे जैसे -6 से +2 पर टिश्यू फ्लूइड प्रेशर आया तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया। और इसका मैकेनिज्म क्या है, जितना प्रेशर टिश्यू फ्लूइड का होगा वो पुश ओपन करेगा एंडोथेलियल सेल्स को बाहर से। जब वो पुश करेगा तो दो एंडोथेलियल सेल्स के एजिस के दरमियान जो खाली जगह थी वहां से पुश करके एंटर हो जाएगा इनटू द लिम्फ। और जब लिम्फ के अंदर आएगा तो जितना लिम्फ चैनल भरता चला जाएगा तो इसका अंदर से जो प्रेशर, बाहर से फिर भी वो एंटर हो सकता है, लेकिन अंदर से जब ये प्रेशर डालेगा वॉल ऑफ द लिम्फ वेसल पर, तो दोनों लिम्फ जो इसके एंड्स हैं दोनों एंडोथेलियल सेल्स के, ये एक दूसरे से किसी भी सेल जंक्शन के जरिए जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये अलग अलग फ्लोट करते हैं। लेकिन जब अंदर से इसको दबाया जाता है तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करके चैनल को बंद कर देते हैं और बाहर नहीं जाने देते। सो एंट्री इज अलाउड एंड एग्जिट इज नॉट अलाउड, एंड देन द वेसल allows the fluid to go away from the tissues into the lymph vessels. So now I read it out. The second point, contractility of the lymph capillaries. Anchoring filaments are placed in such a way that they allow flow away from the lymphatic capillaries. So this special structure of the lymphatic capillaries permits passage of substances of high molecular weight into the lymph. जो भी मोटी मोटी प्रोटीन्स बनाई हैं सेल्स ने या कहीं गलती से फिल्टर हो गई हैं, they will be pushing into the lymph channel through these vessels with प्रेशर के, वो प्रोटीन होगी उसके साथ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड होगा, वो इनसे अंदर आ जाएगा। नाउ दीज एंकरिंग फिलामेंट्स हैव एंकर्ड दीज endothelial cells of the lymph capillaries with the collagen fibers in the tissue spaces. देखे थे ना टिश्यू स्पेसिस में कोलेजन फाइबर्स, ये उनके साथ उसको एंकर कर देते हैं, लिहाजा ये कैपिलरी के सेल अलग अलग कोई फ्लोट नहीं कर रहे होते, बल्कि दे आर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी at the specific site, and this is a lymph capillary. When the fluid enters it, it is pumped into the next channel and then there are valves in it, so इन valves की वजह से वो फिर आगे जाता है, पीछे नहीं आ सकता। And now the third point, or factors affecting the rate of lymph flow. This is peristalsis in the lymph channel. These are smaller lymph capillaries, then these are a little larger lymph capillaries, and then this is a collecting lymph duct, collective lymph vessel. So you see that there are epithelial lining cells which have got valvular action and which allow the passage of fluid only further forward and do not allow backflow
of the fluid into the previous channel. Now with this statement, we also give a statement that smooth muscle fibers are present in the walls of the lymph vessels that will pump the fluid. और जब वो पंप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्लूइड प्रेस होगा तो वेल्व से पीछे नहीं जा सकता, इसलिए आगे की तरफ जाएगा. और सो फाइनली आपको जो थोरेसिक डक्ट सब सारी बॉडी का तकरीबन फ्लूइड डालती है वीनस सिस्टम में एट द जंक्चर ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन एंड द सबक्लेवियन वेन. उस वक्त थोरेसिक डक्ट के जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, they exert a pressure of 50 to 100 millimeter of mercury to pump the fluid into the venous system. Now coming to the functions of the lymphatic system, it maintains the plasma volume and its composition as it pours proteins and large particles back into the blood. जाहिर है जो कुछ भी फिल्टर हो गई थी प्रोटीन गलती से, अब उन या कोई लार्ज पार्टिकल्स फिल्टर हो गए थे, अब उनको वापस ब्लड में लेके जाना है. जब वो ब्लड में वापस जाएंगे तो वो अपने साथ कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ पानी भी लेकर जाएंगे, तो प्लाज्मा वॉल्यूम भी पूरा होगा और जो प्रोटीन्स निकल गई थी जब वो वापस जाएंगी तो कंपोजिशन भी दोबारा से मेंटेन हो जाएगी. द टिश्यू फ्लूइड वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड नेगेटिव प्रेशर, ये भी जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम ने उसको मेंटेन करना है. टिश्यू फ्लूइड में अगर पड़ा रह जाए पानी तो टिश्यू फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. टिश्यू फ्लूइड के अंदर अगर प्रोटीन्स और सॉल्ट्स और लार्ज पार्टिकल्स पड़े रह जाएं तो वो भी टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन जो है उसको ख़राब करता है. लिहाजा लिम्फ जो है वो इसको बहा के जब ले जाती हैं तो वो टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन को भी मेंटेन करती हैं. और टिश्यू फ्लूइड में सिर्फ प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है, वो जो -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर उसके अंदर डाल रहा होता है, अगर आप वहाँ पे पड़ा रहने दें फ्लूइड वॉल्यूम बहुत सारा तो ये नेगेटिव प्रेशर भी ख़राब होता है. लिहाजा लेस टिश्यू फ्लूइड वॉल्यूम, clean composition of the tissue fluid and the negative pressure of the tissue fluid are being maintained by the lymphatic system. Transport of digested lipids to the circulation is a part. लैक्टियल्स बनती हैं इसमें से, इसमें मिल्क होता है, इसको ये वाइट कलर का सारा होता है क्योंकि जितना भी लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. और ये जो लिम्फेटिक चैनल्स गोइंग अवे फ्रॉम द जीआईटी जो हैं उनका नाम लैक्टियल्स है, उनके ज़रिए ये वापस लेके जाए जाते हैं. अब आपके पास आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लिम्फेटिक्स का है और वो है प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्रोकन सेल्स. जो भी आरबीसी ब्रोकन है वो होंगे, बैक्टीरिया अगर अंदर आ गया लिम्फ चैनल से वो होंगे, जो भी चीज़ें उसे फिल्टर करते हैं. यहाँ जो साइनोसाइड्स हैं वो परकोलेट कर रहे होते हैं ब्लड, वो भी आता है, और लिम्फ चैनल्स जो हैं वो भी आते हैं. यहाँ पे सब कुछ फिल्टर होता है और ओनली दो सब्सटेंसेस आर अलाउड टू गो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी. बाकी सारे यहाँ प्रोसेसिंग उनकी शुरू हो जाती है. फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस इन द लिम्फ नोड्स, यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने जब एंटीजेंस को पकड़ लिया है तो अब वो यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे साइटोकाइंस की और उसके साथ साथ एंटीबॉडीज की, जो कि पोर करेंगे ब्लड में या लिम्फ में, जो कि यहाँ से फिर वापस जाएगा. ब्लड अलग जा रहा होता है साइनोसाइड्स के जरिए और जो लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ लेकर जा रही हैं उससे फिर एंटीबॉडीज और साइटोकाइंस सर्कुलेशन में एंटर होते हैं.